اپنے اندر جا کے اپنے کمپلیکسز سے آزاد ہوگا, جب اپنے اندر جا کے وہ جو ایکسٹریم لیولز کی محبتیں فضول کی, ایکسٹریم لیولز کے غصے فضول کے, ایکسٹریم لیول کا بغض فضول کا, ایکسٹریم لیول کی ہیٹریٹ, ایکسٹریم لیولز کی انیکولیبریم امبیلنسز کو جا کے جب نیوٹرلائز کرتا ہے نا, بہت درد ہوگا بیٹا آپ کو جب آپ کو یہ جملہ کہنا پڑے گا جو آج میں یہاں کہتا ہوں. There is no shortcut to success بیٹا, غلط راستہ اختیار نہ کریے اپنی منزل تک پہنچنے. جیت کی ڈیفینیشن ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا قطعاً نہیں ہے. جیت کی ڈیفینیشن ایک مقام سے دوسرے مقام تک لوگوں کے حق مارے بغیر پہنچنا ہے. یہ کیا تیری جیت ہوگی بیٹا کہ تو سلطنتیں تو بنا گیا مگر جرم کی لمبی فہرست درم کر گیا دنیا میں. لوگوں کے حق نہ ماری پتر, اپنے ماں باپ کا حق نہ ماری. ان سب گھاٹیوں سے علم نے گزرنا ہے تو فیلئر ہار اس فیلڈ کی تاج ہے, اس کا معراج. جو انسان کہے میں ہارا نہیں زندگی میں, بھائی جان وہ بن ہی نہیں سکتا کچھ کبھی. اور جو ہار کے سیکھا نہیں وہ بھی نہیں بن سکتا کچھ. اور جو ہار کے اٹھا نہیں اسے تو پہلے ہی کہیں بھائی جان یہ آپ کا ویزا ہے, واپس چلے جائیں, اس ملک اور اس وادی میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ تنہائیوں کا گیم ہے یا اکیلے پنوں کا گیم ہے. شکوک اور شبہات اور اضطراب کے ایسے محل ملیں گے آپ کو, آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اس پوری اسٹرگل کے اندر زندگی میں اپنے خواب میں کچھ بنانے کے لیے, اپنا آپ منوانے کے لیے اور اپنا لوہا منوانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے لوگ باہر کنونس کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جان سب سے پہلی تربیت اپنی ہوتی ہے. 40 سال میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا گرائنڈ کیا کہ ہی واز دا ماسٹر آف دا ونس بفور ہم اینڈ دا ونس ٹو کم آفٹر ہم. لیکن اتنی بڑی تحریک کیسے کھڑی ہو سکتی تھی جب تک کہ اس شخص کی اس انسانی ایٹریبیوٹس کا وہ کمال اور جمال کا ظہور نہ ہوتا کہ جس نے دنیا میں مائیکل ہارٹ کے جملے کو پورا کرنا تھا کہ اگر انسان کی کوئی معراج ہو سکتی ہے نا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس نے ہیومن پوٹینشل پہ وہ پرفارمنس دی ہے, کنسسٹنسی, کانشیسنس, سرٹنٹی, یقین, صبر, استقلال, تحمل, مستقل مزاجی, دوام, اور اس کے بعد روحانیت, اسپرچویلٹی, تعلق باللہ, تزکیہ, تعلیم, حکم کے ایسے باپ باندھے ہیں اس نیچرل کیپیسٹی اور پوٹینشل پہ ایز اے ہیومن بینگ. یہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی نہ پہلے نہ آخری کے اندر. اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بگیسٹ فینومینن ان ہیومن لائف دیٹ کین ہیپن. ایک شخص اتنی ایکچوئلائز لائف کیسے جی سکتا ہے؟ یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہمیں جذبات, محبت, غضب, دکھ, درد, امیدیں یہ فیولڈ ہوتے ہیں, یہ نائٹروز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیے جا سکتے ہیں. مگر اتنا لمبا سفر ہے یہ, اتنا تھکا دینے والا سفر ہے یہ, اتنا توڑ دینے والا سفر ہے یہ. اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا. اس میں انسان کو اصول چاہیے, اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے, اس میں انسان کو نظریات چاہیے, تفکر چاہیے, تفکر فی الشرع چاہیے, تفکر فی الکون چاہیے. اسے وہ سوچ چاہیے جو اس کے اندر سے سیلف پروڈکٹیوٹی کریٹ کرتی ہو کہ دس از این ought فار می ٹو ڈو اٹ. میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے, میں نے اس کو نیچے لگانا ہے, میں نے اس میں شہرت حاصل کرنی ہے, میں نے اپنے نفس کو پروف کرنا ہے. ویژن بنایا اس لیے جاتا ہے because it is the ought of the time. یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا چاہیے, اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید عرش کے بادشاہ نے مجھے چنا ہے اس کے لیے. میں کلیم نہیں کرتا, لیٹ می گیو اٹ اے ٹرائی. تو تکبرانہ مزاجوں کے ساتھ جہاں نفس میں حسد ہو, بغض ہو, تکبر ہو, کینہ ہو, یہ چھوٹی سیلف سینٹرڈ انٹروسپیکٹیو ویلیوز کے ساتھ امامتیں اور قیادتیں نہیں ہوتی. بھاجن سفر بہت لمبا ہے. آپ کو لوگ چاہیے, آپ کو ریسورس چاہیے, آپ کو ٹیم چاہیے جو کم پیسے میں آپ کے ساتھ کام کرے. اگر آپ کے مزاج کے اندر, آپ کی پرسنالٹی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, آپ دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن بنائیں گے. آپ ریسورس ضائع کریں گے, آپ اہل کی ناقدری کریں گے, آپ میرٹ کو اٹھا کے پھینکیں گے, اور آپ اپنے ارد گرد وہ لجنا بنائیں گے جو خوشامد پرستوں کی. اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو بھائی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں, زندگی کی جنگ میں وہ شخص جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اپنی ویلیوز کو پراپر کر کے لایا ہوگا, آپ نہیں جیت سکتے اس سے. اگر وہ اللہ لائے گا جنگ میں اپنے ساتھ ایک مشین چلانے کے لیے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائے گا اس جنگ کے اندر اپنے ساتھ, اور وہ بزرگوں کے تجربے لائے گا اپنے ساتھ, وہ ماں باپ کی دعائیں لائے گا اپنے ساتھ, فیلڈ کے آئنسٹائن کی تھیوریز لائے گا اپنے ساتھ, اور دنیا کے اندر کانٹمپلیشن لے کے آئے گا ان وقتوں میں جہاں ہم پارٹیاں کر رہے تھے, جہاں ہم لگے ہوئے تھے ادھر ادھر مستیوں کے اندر. because we thought life is a walk in a park and peas and carrots. اگر وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ لائے گا, اگر وہ اپنا ریسورس مینجمنٹ لائے گا, آپ اس سے نہیں جیت سکتے. اس کے بعد بھی اگر وہ ہار گیا اور اگر وہ ٹیپ اپ کرتا ہے کہ ویل ڈن برادر, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پازیٹیو کمپٹیشن میں تیرے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے, انجوائے یور سکسیس. ایسے پٹھے کو آپ نہیں ہرا سکتے.
हर इंसान इस दुनिया में एक टेस्ट से गुजर रहा है, बट अप टिल येट राइट नाउ आप कंडीशनड हो चुके होंगे अपने घर के माहौल से, तो किसी के अंदर होप बहुत ज्यादा डेविस्टेटेड लेवल पर होगी, किसी का खौफ बहुत होगा, किसी में कॉम्प्लेक्स बहुत होगा, किसी में गुस्से का एलिमेंट कंट्रोल या उसका बैलेंस नहीं होगा। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस और लूप होल्स की वजह से बिहेवियरल साइकोलॉजी ने 6-7 बड़ी पर्सनालिटियां बना ली होंगी। एक मस्करा होगा, उसके लिए हर जगह किट लगाना ही मीटिंग द रियल एक्चुअलाइज्ड सेल्फ। आपको कुछ मिलेंगे ना, वो मस्ती नहीं करेगा, बात नहीं लगाएगा, ही इज नॉट गोना पुल द लेग, उसकी रूह को शांति नहीं मिल सकती। सो यू विल फाइंड सम जोकर्स इन लाइफ, दे आर नॉट एक्चुअली जोकर, डीप इनसाइड दे वेरी डिप्रेस्ड पीपल, वेरी सैड और दे वेरी डिस्टर्ब्ड और दे वेरी इम्बैलेंस्ड एंड अननेचुरल। तो जाहिर में जो छलांग ज्यादा लगाता है ना, अंदर भी इसका मतलब है कच्चा है, दम नहीं है। जिसकी जाहिर में बहुत छलांगे हैं ना और बहुत ज्यादा जुबान भी चल रही है और बहुत कुछ चल रहा है, इसका मतलब है देयर इज नो सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी एंड इक्विलिब्रियम इन द हार्ट। जो एक लेवल से ज्यादा खामोश है, ये भी बैलेंस नहीं है, कुछ हिला होगा अंदर से। जो हद से ज्यादा गुस्से में बैठा है, ये भी बैलेंस नहीं है, समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन्स इनर पोटेंशियल और द इनर हार्ट और द इनर माइंडसेट एंड द इनर EQ एंड द IQ। कुछ लोग बोल रहे हैं, चुप नहीं हो रहे, कुछ चुप है, बोल नहीं रहे, कुछ हंस रहे हैं, सीरियस नहीं हो रहे, और कुछ ऐसी संजीदा एंड सीरियस पार्टी यू विल फाइंड इन द क्राउड कि उन्हें जो जेन्युइन मजाक भी होता है ना, जो सॉलिड हमारा मजाक होता है, वो भी फॉलो नहीं होता। तो आज तुम्हारी उम्र के अंदर ना तुम्हारे मसाइल, तुम्हारा दिल, तुम्हारे जज्बात, ये नहीं कहता सही नहीं होंगे, मगर छोटा बहुत होगा भी। इसलिए किसी को उठा के फेंकने की भी बहुत छोटा रीजन होगा, किसी पे मर मिटने का भी बहुत छोटा रीजन होगा, छोटा कलेजा, छोटा कुआं, बैठा अंदर छोटा एक मेंढक। किसी को कबूल करने के लिए भी ये दिस इज इट, और किसी को रिजेक्ट करने के लिए भी एक चीज बुरी लगनी है, उठा के माइनस कर देना उसको। लाइक एब्सोल्यूट रियलिटीज होती है इस एज। एक लेवल, एक मिनट में एब्सोल्यूट हो जाता है इंसान। दुश्मनियां भी 1 रुपए की, छोटा दिल, कलेजे का साइज बढ़ता है दर्दों को अपना के, कलेजे का साइज बढ़ता है इनकन्वीनियंस जोन्स में जाके, कलेजे का साइज बढ़ता है अनकंफर्टेबिलिटी अडॉप्ट करके। इंसान के अंदर के दिल का साइज बढ़ता है जब वो अपना इनकार कर देता है, जब वो अपने खिलाफ जाता है, जब वो अपनी ख्वाहिशात को मुंह देता है और वहां काटी लगा देता है। इंसान का सीना तब बढ़ता है जब वो अपने आप को बिठाता है वहां पर जहां उसकी कमर नहीं बैठना चाह रही होती। इंसान का सीना तब बड़ा होता है आइडिया क्रिएशन के लिहाज से भी। मैं क्रिएटिविटी पे लेक्चर देता हूं, मैं इसमें जितने डिजाइनर्स हैं उनको ये सिखाता हूं, अ स्ट्रॉन्ग एंड हाई क्लास आइडिया कैन नेवर कम फ्रॉम अ नेगेटिव ब्रेन, कैन नेवर कम फ्रॉम अ लिमिटेड माइंडसेट। सो इफ यू वांट टू अचीव कि तुम उस लेवल की आइडिया क्रिएशन कर सको, ये बड़ा होना चाहिए इंसान का सीना। मगर ये कब होगा? जब वो अपने अंदर जाके अपने आप से आजाद करेगा, जब वो अपने अंदर जाके अपने रोनों से आजाद होगा, जब वो अपने अंदर जाके अपने कॉम्प्लेक्सेस से आजाद होगा, जब अपने अंदर जाके वो जो एक्सट्रीम लेवल्स की मोहब्बतें फजूल की, एक्सट्रीम लेवल्स के गुस्से फजूल के, एक्सट्रीम लेवल का बुग़्ज़ फजूल का, एक्सट्रीम लेवल की हेट्रेड, एक्सट्रीम लेवल्स की इनइक्विलिब्रियम इम्बैलेंसेस को जाके जब न्यूट्रलाइज करता है ना, बहुत दर्द होगा बेटा आपको जब आपको ये जुमला कहना पड़ेगा जो आज मैं यहां कहता हूं, आई थिंक आई वाज रॉन्ग एंड आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग। इट्स अ हार्ड सेंटेंस टू से। ये हुस्न अंदर का इंसान खूबसूरत पता कब होता है? तो वो सच बोलता है अपने आप से। बहुत मुश्किल है सच, बहुत मुश्किल, और ये सच्चाई की जो प्राइस है ना, बड़ी सख्त प्राइस है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है ना, वो दुनिया हिला देता है। सच की कीमत बड़ी सख्त है बच्चों, अपने आप से बोलने। अगर तुझे जीत नसीब हो या हार नसीब हो, अगर तू गिर जाए मेरे बच्चे, अगर इस रास्ते में गैरत के इस सफर में, गैरत और इज्जत के और म्यार के सफर में अगर मेरे बच्चे, मेरे कौम के बच्चे, मेरा खून, मेरे लाल जो बैठे हैं यहाँ पर, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, बेटा अगर तू कल गिर गई अगर, या अगर तू पहुंच गया कहीं, बेटा ज़र्फ का दामन ना छोड़ी, अगर जीत गया तो शेखी ना बुगेरी, तकब्बुर ना करी, डींगे मत मारी, फखर ना करी कभी इसके ऊपर। तेरी शान होनी चाहिए कि जिस दिन तुझे जीत मुयस्सर हो, तेरा सर झुका होना चाहिए उस दिन अल्लाह के आगे। वो आज़ी, वो इनकिसारी तेरा किरदार होना चाहिए। तुझे पता होना चाहिए कि तेरे यहाँ तक पहुंचने के अंदर तेरे उस्तादों की ये गरम गरम तकरीरें थी। तुझे उन लोगों को क्रेडिट देना है जो तुझे वहां तक पहुंचाने में जिम्मेदार थे। बेटा तो किसी दिन ये ना कही कि मैं यहाँ तक पहुंचा, तू नहीं पहुंचा, बेटा तेरे साथ कौन पहुंची है वहां तक। तो लोगों के उनके हिस्से की मेहनत का हक जरूर अदा करी, कभी किसी के हक पे डाका मत मारी, उस जीत के ऊपर कभी फखर का दामन ना अपनाई। हमेशा ये कही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, अल्लाह ने मैनू दिता है, अल्लाह दिता है मैनू, मैंने कुछ नहीं बनाया। बेटा आज सी इंकिसारी रखी उस म्यार पर, ज़र्फ और कलेजा
होना चाहिए उस वक्त। बेटा अपने दुश्मनों को उस ऊंचाई पे वो म्यार दी, वो इज्जत दी, कलेजे से लगाई अपने दुश्मनों को। उन्हें महसूस होना चाहिए वो कितने छोटे हैं और तू कितना बड़ा है। तूने अपने सीने देने हैं काट काट के लोगों को, और अपने दुश्मनों को तो अपना खून अपने हाथों से पिलाई अपना खून, ताकि उनके ऐवानों के अंदर भी शर्मिंदगी के तौर हो कि हमने किसी चूहे से मुकाबला नहीं किया, हमने मुसलमानों के पेटों के अंदर से शेर पैदा होते हुए देखे। तो बेटा तुझे ज़र्फ अपनाना है। और अगर तू हार गई और आसमान का फैसला तेरे खिलाफ चला गया, जिंदगी में तेरे पैर टूट जाए बेटा किसी दिन, और तेरी सल्तनत तेरे हाथों से छिन जाए, ये हुस्न, ये जमाल, ये कमाल तेरी उंगलियों से निकल जाए, और तू अपने साए के साथ भी ना हो, तन्हा खड़ा हो, तब भी ज़र्फ रखी पुत्र। एक बड़ा आदमी, उसकी जीत और हार रोग नहीं, वो डिफाइन करता है अपनी हार और जीत। अगर ज़ाहिरी असबाब छिन भी गए तो क्या हुआ, अगर तू खड़ा है, मकाम खड़ा है, मिजाज खड़ा है, हैसियतें खड़ी हैं और औकातें खड़ी, अगर तू खड़ा है, घबराई नहीं, ज़र्फ रखी अपना। अपने दुश्मनों को, अपने मुखालफीन को वो मुस्कुराहट दी जो उनकी जीत का मजा किरकरा कर दे। अपने दुश्मनों को वो मुस्कुराहट दी पुत्र जो उनकी जीत का मजा किरकरा कर दे। तेरे गोश्त पे जो वो खाना खाएंगे वो गोश्त किरकरा कर दी, खट्टा कर दी अपनी मुस्कुराहट के साथ कि तू मुझे अब भी नहीं मार सका। मैं वो नजरिया हूँ, मैं वो सोच हूँ जो सूरे बुरूज के मुताबिक दकियानूस के बादशाह ने जब पूरी कौम जला दी तो ज़ाहिरी लिहाज से मुसलमान दफन कर दिए गए, उन खंदकों पे जला दी गए, खोलो सूरे बुरूज, लेकिन जिस्म जल गया, रूहें उड़ गई। अल्लाह ने इसको हार नहीं कहा, अल्लाह ने कहा ज़ालिकल फौजुल कबीर, इट इज नॉट अ सक्सेस, इट इज इंडीड अ ग्रेट सक्सेस, क्योंकि उनका फलसफा रह गया दुनिया के अंदर। बेटा अगर तू हार के भी लोगों के दिल में जिंदा है तू फिर भी जीत गया, घबराई नहीं। मैं तुझे कह रहा हूं जिंदगी ऐसे जी, जिंदगी ऐसे जी बेटा, कलम या तेरे हक में लिखे या कलम तेरे रद में लिखे, कलम तुझे इग्नोर ना कर सके बेटा, इतनी बड़ी करनी है तुझे जिंदगी, कलम तेरे हक में लिखे या तेरे रद में लिखे। इतनी बड़ी जिंदगी बनाई तू, ये अपनी आंखों से दुनिया को ये एहसास दिलाई कि मैं तुम्हारे कलेजों में से, मैं तुम्हारे कलेजों में से तुम्हारा जिगर निकाल के खा जाऊंगा इंशाल्लाह। तो बोले ये हवाएं, और शैतान ने किसी जंगी कायद के कान में कहा बी वेयर ऑफ द स्टॉर्म, तूफानों से डरते रहना। उस लीडर ने कहा मैं ही तूफान हूं, मैं किस तूफान से डरूं। जिंदगी में एक तूफान बन बेटा, अपने अखलाकियात का एक मिजाज बन बेटा, लोगों के अंदर अपनी वैल्यूज का एक सैलाब बन बेटा, और जिंदगी में अपने म्यार से गिरी हुई हरकत कभी ना करी, कभी छोटापन ना दिखाई, जीत और हार में कभी उस जाविये से गिरी हुई हरकत ना करी कि हमारे सर भी झुक जाए उस टाइम। और अगर किसी दिन मैं गिर जाऊं बेटा तो मेरा ही दर्द मुझे आके सुनाई कि उस्ताद जी आपने ये अल्फाज कहे थे, आज आप कैसे अपने म्यार से गिर गई बेटा। टूटों को सहारा दें, तेरी जिंदगी टूटों को सहारा हो, तेरे अल्फाज से कौम जागती हो और एक कौम सोती हो तेरे अल्फाजों से, तेरे अल्फाज और तेरी जिंदगी के तर्ज से दुश्मन भी जीते हो तेरी वजह से। लोगों को दुश्मनियों का भी ऐसा मिजाज बख्शी कि तारीख के दरियाओं को अपना रुख बदलना पड़ जाए कि क्या दुश्मन दिया है अल्लाह ने हमें। ऐसा दुश्मन बनी लोगों का अगर तुझसे कोई टकराने आए कि वो याद रखें और उनकी नस्लें याद रखें कि जो यकीन की राह पे चल पड़े, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें बस पसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बह गए। यकीन रखी अपनी जिंदगी पर, अल्लाह पर यकीन रखी, ये सब बदलेगा, तेरे हालात बदलेंगे, उस गुर्बत को वो खिना नसीब होगा इंशाअल्लाह। यकीन रखी पुत्र, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस बेटा, गलत रास्ता इख्तियार ना करिए अपनी मंजिल तक पहुंचने। जीत की डेफिनेशन एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचना कतई नहीं है। जीत की डेफिनेशन एक मकाम से दूसरे मकाम तक लोगों के हक मारे बगैर पहुंचना है। ये क्या तेरी जीत होगी बेटा कि तू सल्तनतें तो बना गया मगर जुर्म की लंबी फेरत गरम कर गया दुनिया में। लोगों के हक ना मारी पुत्र, अपने माँ बाप का हक ना मारी, अपने असातिज़ा का हक ना मारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन रातों को याद रखी, मेरे नबी की उन रातों को याद रखी पुत्र, जब वो तंग तन्हा उन वादियों में अकेला था किसी जमानों में, जब दुनिया नहीं जानती थी कि कायनात का इससे बड़ा शाहकार ना इससे पहले ना इसके बाद आ सकता है कभी। उन्हें खुद भी उस टाइम पर क्या उनका खुद क्या आलम होगा कि दुनिया को एक आफताब
में रोशनी दिखानी थी उस आफताब को भी अभी, क्या उस टाइम पर उसके हालात और माइंड सेट होंगे। 40 साल मेरा नबी उन तन्हाइयों में अकेला मक्के में था, उन गुर्बतों में उन्होंने बकरियां चराई। मेरे नबी की तन्हाइयों की इज्जत करी पुत्र, मेरे नबी के ताइफ के उन पत्थरों की लाज रखी कि जब किराए के टट्टुओं को हायर करके उन्होंने पत्थर मार के मेरे नबी का मुकद्दस खून बहा दिया। बेटा, एक ज़र्फ वाली कौम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को अपने पैरों तले नहीं रोनती, कलेजे में रखती है उसको गैरत बना के। और मुंह से गिले ना करी, पालना सीख, अपने गुस्से को पालना सीख, अपने दर्द को पालना सीख, अपने कलेजे के अंदर को कंटेन करना सीख। लोगों की हल्की फुल्की फिसली फुसली बातों के आगे अपना अंदर का अपना खो। आज हम आपसे मांगने आए हैं, कल मैं आपका ये स्कूल खरीदने आऊंगा इंशाल्लाह, याद रखिएगा। लेकिन आज मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं और आपके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। कल आप हमारा वक्त मांगेंगे और कौन आपको नो करेगी उस टाइम पर कि ये हम आपको नहीं दे सकते। मैं इतनी बड़ी सल्तनत खड़ा करूंगा क्योंकि मैं गैरतमंद भी हूँ, गयूर माँ बाप की औलाद भी हूँ, किसी बेहया का खून नहीं हूँ। आई एम अ मैन हु इज मेंट टू कॉन्कर डेस्टिनीज। आई एम अ मैन हु इज मेंट टू नेल डाउन हिज परसेप्शन इन पीपल्स हार्ट। वो गम ही नहीं होता बेटा, विजन में अपना तो गम ही नहीं होता। कौम होती है, लोग होते हैं, लोग होते हैं और बाजू होते हैं अपने साथ। सिर्फ दर्द होता है, वो आंसू होते हैं जो अंदर ही होते हैं, और अल्लाह होता है, बंदा कहीं नहीं होता। और अपने आप को काट के गोश्त देना होता है कौम को, खून देना होता है अपनी कौम को, अपने लोगों को। और आप सोचे हैं घर में खाने को नहीं होगा, मगर आपका मार्केटिंग HR का आदमी कहेगा कि भाईजान मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है, 25,000 नहीं है। आपको अपने लोगों इतना सब्र करना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पर रिसोर्स नहीं है बेटा, लोग नहीं है तेरे साथ। तू छोटी सी कंपनी है और पहले तो तू ही HR होगा, तू ही कॉर्पोरेट मार्केटिंग होगी, तू ही सेल्स डिपार्टमेंट होगा, तू ही सब कुछ, तू CEO भी तू, और पूरी कंपनी का वो जमादार भी तू, जिसने अपने इन कपड़ों से पोछे लगाने होंगे। कोई नहीं होगा तेरे साथ। हार ना मानी। आज तू पातेक फिलिप्स, रोलेक्स, रसल एंड ब्रोमली और गुची अरमानी नहीं पहन सकता तो घबरा नहीं, ये सब तेरी कदमों के ऊपर आ जाएंगे एक दिन। तो इसलिए कहते हैं लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कुछ नहीं होता, जब कुछ होता है फिर तो दुनिया चूमने आती है। जब आज अगर तू कुछ नहीं है, आज अगर तू कुछ नहीं है, मैं तुझे कह के जाता हूं बेटा, इज्जत कर अपनी। एक दिन होगा जो जमीन पे नहीं, तू कंधों पे एंट्रियां मारेगा यूनिवर्सिटियों के अंदर लोगों की। लेकिन घबरा नहीं, ये वक्त मुश्किल होता है। ख्वाब देखना सबसे अजीम तरीन कुफर इस जमाने के, कि मैं ये बनाना चाहता हूं। उसके बाद उस ख्वाब को रिटेन करना, उस ख्वाब को अपने आप को रोज ड्रिल डाउन करना, नील डाउन करना, और फिर बनाते बनाते एक गाड़ी और आगे आपसे निकल जाएगी, 4 गाड़ियां और निकल जाएगी, और अंदर से आवाज आएगी, छोड़ दे भाई, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। नहीं, यहां से इनकलाब खड़े होते हैं। यहां ऐसी ऐसी खामोशियां होंगी आप सोच नहीं सकते। सो इट्स अ गेम ऑफ मसल एंड इट्स अ गेम ऑफ स्पिरिट एंड इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रेटेजी। जो लोग समझते हैं कि मैं बहुत हद तक तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं, और आप देखेंगे वो गेंडे की तरह दीवार में सर मारते रहेंगे, हालांकि वो काम स्ट्रेटेजिकली किया जाता तो कम रिसोर्स जाया किए हुए जल्दी हो सकता था। और कुछ लोग इतने बुकवर्म्स और इतने प्लानिंग के जीते होंगे, प्लानिंग चल रहा होगा, लेकिन मसल हिलाने नहीं है कभी। बैठे हुए किताबें लिख दी होंगी, यूं होना है, यूं होना है, यूं होना है, मगर एक इनिशिएटिव नहीं लिया। सो वो इल्म जो कभी नीयत ना बन सका, और वो नीयत जो इरादा ना बन सकी, और वो इरादा जो अज़म ना बन सका, और वो अज़म जो कसद ना बन सका, और वो कसद जो अमल ना बन सका, और वो अमल जो नतीजा ना ला सका, और वो नतीजा जो मुहासबा ना करा सका, और वो मुहासबा जो तौबा ना करा सका, ऐसे इल्म के बारे में तो अल्लाह कुरान में कहता है कमसले हिमार यहमिलु अस्फार, ये गधे हैं जिन्होंने किताबें अपने ऊपर रख ली हैं। एक है सबर अपने आप के साथ, पेशेंस। द फर्स्ट रेसिपी ऑफ विजन मैनेजमेंट इज एंड सक्सेस इज अनडिफाइंड सबर, अनक्वांटिफाइड सबर। इतना सबर कि इंसान कहे मेरा जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा काम देगा। मेरा जवाब मैं नहीं, मेरी कौम देगी। मेरा मुंह मेरा जवाब नहीं देगा, कायनात का मालिक जवाब देगा मेरी तरफ से। इतना सबर अपने नफ्स की शॉर्टकमिंग्स पर, अपनी नफ्स की कमजोरियों पर, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन में कंसंट्रेशन रिस्पांस टाइम के ऊपर, लोगों की बातों के ऊपर, लोगों की धुतकारों के ऊपर, CV रिजेक्ट होने के ऊपर,
और धक्के खाने के ऊपर और उन तन्हाइयों के अंदर जहाँ लोग तेरे अंदर का वो जिन नहीं देख सके, जहाँ लोग तेरे अंदर का वो आतिश फिशा ना देख सके, उन वक्तों का सबर जब तुझे वैसे ही मार्केटिंग में बुला लेंगे जब तू मशहूर हो जाएगी और हो जाएगा। उन वक्तों का सबर जब कोई नहीं जानता होगा कि यार ये वाकई फ्यूचर का एक फ्यूचर जा रहा है यहाँ से। उन वक्तों का सबर जब लोग नहीं जानते होंगे, आज इससे बात करने के लिए भी इसको ओए ओए करके बुलाते हैं, कल इसके मार्केटिंग हेड को मैसेज करना पड़ेगा यार इनसे एक लेक्चर दिलवा दो। वो सबर के लोग उन कब्रों में तुझे गिरा के आएंगे और ऐसी सरों पे गोलियां मार के आएंगे कि तू हेड शॉट के बाद उठ ना सके। इतना सबर तुझे चाहिए बेटा। मुंह से कायल करेगा ना तो इस शहर का कोई जानवर भी नहीं तुझे सुनेगा, और तू लोगों को कायल करना चाह रहा है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। बेटा अपने अमल से प्रूव करता है आदमी। इतना सबर के मुंह को टेप लगा ले। स्टॉप यापिंग फ्रॉम योर माउथ एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग टुवर्ड्स योर ग्रेट सक्सेस इन जर्नी। इतना सबर। मारने दे इन्हें खंजर तेरे छातियों पर, मारने दे इनको खंजर अपने ऊपर, कोई गम की बात नहीं है। अबे ये तो तारीख है इमामों की कि उन्हें सीनों और गर्दनों और उनकी गलों और गिरबानों के ऊपर छुरे मारे गए हैं। वो लीडर ही क्या, वो जो शुरुआत में डिस्कवर हो जाए। जब वो डिस्कवर होता है ना तो गोल्ड कोस्ट जैसी फिर चैनल्स के ऊपर ना उसकी मोटिवेशनल वीडियोस चलती हैं। फिर जब वो डिस्कवर होता है ना तो फिर वो टोनी रॉबिन्स और स्टीवन कवी जैसे लोग बन जाते हैं। जब वो डिस्कवर होता है ना तो वो अल्लामा इकबाल होता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान होता है। फिर वो बट अ टैलेंट एंड अ जीनियस विल ऑलवेज बी डिस्कवर्ड। बेटा गलत रास्ता अख्तियार ना करिए अपनी मंजिल तक के लिए। अपने उसूल अपनी वैल्यूज का गला ना घोंटी कभी। अपनी जात को चंद टकों के आगे बेचना नहीं कभी। तेरे आइडिया को बाहर भी लगेगा, फाइनेंस भी लगेगा, लोग भी लगेंगे और टीम भी लगेगी। सबर, इतना सबर, मगर सिर्फ सबर करके बैठना भी नहीं है। वकानु भी आयाती ना युकिनून, यकीन भी रखी। पॉजिटिविटी, यकीन अमल प्रोड्यूस कराता है, यकीन पॉजिटिविटी निकालता है। यकीन जो गाल पे थप्पड़ मारता है ना उसको स्माइल देता है। कोई मसला नहीं सर, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आज हम आपसे मांगने आए हैं, कल मैं आपका ये स्कूल खरीदने आऊंगा इंशाल्लाह, याद रखिएगा। लेकिन आज मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं और आपके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। कल आप हमारा वक्त मांगेंगे और कौन आपको नो करेगी उस टाइम पर कि ये हम आपको नहीं दे सकते। मैं इतनी बड़ी सल्तनत खड़ा करूंगा क्योंकि मैं गैरतमंद भी हूँ, गयूर माँ बाप की औलाद भी हूँ, किसी बेहया का खून नहीं हूँ। आई एम अ मैन हु इज मेंट टू कॉन्कर डेस्टिनीज। आई एम अ मैन हु इज मेंट टू नेल डाउन हिज परसेप्शन इन पीपल्स हार्ट। वो गम ही नहीं होता बेटा, विजन में अपना तो गम ही नहीं होता। कौन होती है? लोग होते हैं। लोग होते हैं और बाजू होते हैं अपने साथ। सिर्फ दर्द होता है, वो आंसू होते हैं जो अंदर ही होते हैं, और अल्लाह होता है, बंदा कहीं नहीं होता। और अपने आप को काट के गोश्त देना होता है कौम को, खून देना होता है अपनी कौम को, अपने लोगों को। और आप सोचें घर में खाने को नहीं होगा, मगर आपका मार्केटिंग HR का आदमी कहेगा कि भाईजान मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है, 25,000 नहीं है। आपको अपने लोगों इतना सब्र करना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पर रिसोर्स नहीं है बेटा, लोग नहीं है तेरे साथ। तू छोटी सी कंपनी है और पहले तो तू ही HR होगा, तू ही कॉर्पोरेट मार्केटिंग होगी, तू ही सेल्स डिपार्टमेंट होगा, तू ही सब कुछ, तू CEO भी तू, और पूरी कंपनी का वो जमादार भी तू, जिसने अपने इन कपड़ों से पोछे लगाने होंगे। कोई नहीं होगा तेरे साथ। हार ना मानी। आज तू पातेक फिलिप्स, रोलेक्स, रसल एंड ब्रोमली और गुची अरमानी नहीं पहन सकता तो घबरा नहीं, ये सब तेरी कदमों के ऊपर आ जाएंगे एक दिन। तो इसलिए कहते हैं लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कुछ नहीं होता, जब कुछ होता है फिर तो दुनिया चूमने आती है। जब आज अगर तू कुछ नहीं है, आज अगर तू कुछ नहीं है, मैं तुझे कह के जाता हूं बेटा, इज्जत कर अपनी। एक दिन होगा जो जमीन पे नहीं, तू कंधों पे एंट्रियां मारेगा यूनिवर्सिटियों के अंदर लोगों की। लेकिन घबरा नहीं, ये वक्त मुश्किल होता है। ख्वाब देखना सबसे अजीम तरीन कुफर इस जमाने के, कि मैं ये बनाना चाहता हूं। उसके बाद उस ख्वाब को रिटेन करना, उस ख्वाब को अपने आप को रोज ड्रिल डाउन करना, नील डाउन करना, और फिर बनाते बनाते एक गाड़ी और आगे आपसे निकल जाएगी, 4 गाड़ियां और निकल जाएगी, और अंदर से आवाज आएगी, छोड़ दे भाई, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। नहीं, यहां से इनकलाब खड़े होते हैं। यहां ऐसी ऐसी खामोशियां होंगी आप सोच नहीं सकते। सो इट्स अ गेम ऑफ मसल एंड इट्स अ गेम ऑफ स्पिरिट एंड इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रेटेजी। जो लोग समझते हैं कि मैं बहुत हद तक तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं, और आप देखेंगे वो गेंडे की तरह दीवार में सर मारते रहेंगे, हालांकि वो काम स्ट्रेटेजिकली किया जाता तो कम रिसोर्स जाया किए हुए जल्दी हो सकता था। और कुछ लोग इतने बुकवर्म्स और इतने प्लानिंग के जीते होंगे, प्लानिंग चल रहा होगा, लेकिन मसल हिलाने नहीं है कभी। बैठे हुए किताबें लिख दी होंगी, यूं होना है, यूं होना है, यूं होना है, मगर एक इनिशिएटिव नहीं लिया। सो वो इल्म जो कभी नीयत ना बन सका, और वो नीयत जो इरादा ना बन सकी, और वो इरादा जो अज़म ना बन सका, और वो अज़म जो कसद ना बन सका, और वो कसद जो अमल ना बन सका, और वो अमल जो नतीजा ना ला सका, और वो नतीजा जो मुहासबा ना करा सका, और वो मुहासबा जो तौबा ना करा सका, ऐसे इल्म के बारे में तो अल्लाह कुरान में कहता है कमसले हिमारिन यहमिलु अस्फार, ये गधे हैं जिन्होंने किताबें अपने ऊपर रख ली हैं।
इन सब घाटियों से इल्म ने गुजरना है तो फेलियर हार इस फील्ड की ताज है, इसका महराज। जो इंसान कहे मैं हारा नहीं जिंदगी में, भाईजान वो बन ही नहीं सकता कुछ कभी। और जो हार के सीखा नहीं वो भी नहीं बन सकता कुछ। और जो हार के उठा नहीं उसे तो पहले ही कहें भाईजान ये आपका वीजा है, वापस चले जाएं, इस मुल्क और इस वादी में आपका कोई लेना देना नहीं। ये तन्हाइयों का गेम है या अकेलेपनों का गेम है। शुकूक और शुबहात और इस्तराब के ऐसे महल मिलेंगे आपको, आप सोच नहीं सकते। लेकिन इस पूरी स्ट्रगल के अंदर जिंदगी में अपने ख्वाब में कुछ बनाने के लिए, अपना आप मनवाने के लिए और अपना लोहा मनवाने के लिए इंसान को सबसे पहले लोग बाहर कन्विंस कर रहे होते हैं भाईजान, सबसे पहली तरबियत अपनी होती है। 40 साल मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने ऐसा ग्राइंड किया है कि ही वॉज द मास्टर ऑफ द वंस बिफोर हिम एंड द वंस टू कम आफ्टर हिम। लेकिन इतनी बड़ी तहरीक कैसे खड़ी हो सकती थी जब तक कि उस शख्स की उस इंसानी एट्रीब्यूट्स का वो कमाल और जमाल का ज़हूर ना होता कि जिसने उसने दुनिया में माइकल हार्ट के जुमले को पूरा करना था कि अगर इंसान की कोई मेराज हो सकती है ना तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसने ह्यूमन पोटेंशियल पे वो परफॉर्मेंस दी है। कंसिस्टेंसी, कॉन्शियसनेस, सर्टेनिटी, यकीन, सब्र, इस्तिकलाल, तहम्मुल, मुस्तकिल मिजाजी, दबाम और उसके बाद रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ताल्लुक बिल्लाह, तस्किया, तालीम, हिकम के ऐसे बाप माने हैं। इस नेचुरल कैपेसिटी और पोटेंशियल पे एज अ ह्यूमन बीइंग ये ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती ना पहले ना आखिरी के अंदर। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द बिगेस्ट फिनोमेनन इन ह्यूमन लाइफ दैट कैन हैपन। एक शख्स इतनी एक्चुअलाइज लाइफ कैसे जी सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमें जज्बात, मोहब्बत, गजब, दुख, दर्द, उम्मीदें ये फ्यूल्ड होते हैं, ये नाइट्रोज होते हैं जो कभी कभी दिए जा सकते हैं। मगर इतना लंबा सफर है ये, इतना थका देने वाला सफर है ये, इतना तोड़ देने वाला सफर है ये, इसमें महज जज्बातों के साथ नहीं खेला जा सकता। इसमें इंसान को उसूल चाहिए, इसमें इंसान को अकीदा चाहिए, इसमें इंसान को नजरियात चाहिए, तफक्कुर चाहिए, तफक्कुर फिल शरअ चाहिए, तफक्कुर फिल कौन चाहिए, उसे वो सोच चाहिए जो उसके अंदर से सेल्फ प्रोडक्टिविटी क्रिएट करती हो कि दिस इज एन ऑट फॉर मी टू डू इट। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उसको गिराना है, मैंने इसको नीचे लगाना है, मैंने उसमें शोहरत हासिल करनी है, मैंने अपने नफ्स को प्रूव करना है। विजन बनाया इसलिए जाता है बिकॉज़ इट इज द ऑट ऑफ द टाइम। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये होना चाहिए, और ये इसलिए कर रहा हूं कि शायद अर्श के बादशाह ने मुझे चुना है इसके लिए। मैं क्लेम नहीं करता, लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो तकब्बुराना मिजाजों के साथ जहां नफ्स में हसद हो, बुग़्ज़ हो, तकब्बुर हो, कीना हो, ये छोटी सेल्फ सेंटर्ड इंट्रोस्पेक्टिव वैल्यूज के साथ इमामतें और क़यादतें नहीं होती भाईजान। सफर बहुत लंबा है। आपको लोग चाहिए, आपको रिसोर्स चाहिए, आपको टीम चाहिए जो कम पैसे में आपके साथ काम करे। अगर आपके मिजाज के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये छोटे छोटे मसाइल हैं, आप दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाएंगे, आप रिसोर्स जाया करेंगे, आप अहल की नाकदरी करेंगे, आप मेरिट को उठा के फेंकेंगे और आप अपने इर्द गिर्द वो लजना बनाएंगे जो खुशामद परस्तों की। अगर आपने यही करना है तो भाईजान मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी की जंग में वो शख्स जो आपके मुकाबले में खड़ा होगा और अपनी वैल्यूज को प्रॉपर करके लाया होगा, आप नहीं जीत सकते उससे। अगर वो अल्लाह लाएगा जंग में अपने साथ एक मशीन चलाने के लिए, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लाएगा उस जंग के अंदर अपने साथ, और वो बुजुर्गों के तजर्बे लाएगा अपने साथ, वो माँ बाप की दुआएं लाएगा अपने साथ, फील्ड के आइंस्टाइन की थ्योरीज लाएगा अपने साथ, और दुनिया के अंदर कॉन्टेम्पलेशन लेके आएगा उन वक्तों में जहां हम पार्टियां कर रहे थे, जहां हम लगे हुए थे इधर उधर मस्तियों के अंदर, because we thought life is a walk in a park and peas and carrots। अगर वो अपना टाइम मैनेजमेंट लाएगा, अगर वो अपना रिसोर्स मैनेजमेंट लाएगा, आप उससे नहीं जीत सकते। उसके बाद भी अगर वो हार गया और अगर वो टैप अप करता है कि वेल डन ब्रदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव कंपटीशन में तेरे साथ ही खड़े होंगे, एंजॉय योर सक्सेस। ऐसे पट्टे को आप नहीं हरा सकते।